الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاری۔ محترم معزز سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس زمین پر بسایا اور ہمیں اور آپ کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا۔ زندگی میں رہ کر کے ہمیں اپنے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، آپ کے سامنے آپ کے حوالے کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی، وہ موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد ایک ہوتا ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اور دوسرا حقوق العباد بندوں کے حق۔ تو بندوں کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بعد، ماں باپ کے حقوق کے بعد جس حق کا تذکرہ کیا ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ یعنی اللہ کی نظر میں ماں باپ کے حقوق کے بعد جو سب سے زیادہ حقوق جو اہمیت کا حامل ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق عطا فرما۔
आमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिला रहमी से मुराद क्या है। इस चीज़ को आप समझिए, लफ्ज़ सिला ये इसको तमाम मकारिम अखलाक शामिल हैं, यानी आपके अच्छे करैक्टर क्या है, आपका किरदार क्या है, इस सिला रहमी को शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पर खंदा पेशानी के साथ लोगों से मिलना, लोगों को सलाम करना, और जो कसूरवार हैं उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, मुआफ़ कर देना, खातिरदारी और खाकसारी के साथ मिलना, रिश्तेदारों पर अपने माल को खर्च करना, और इसी तरीके से उनकी गलतियों, उनकी बदसलूकियों को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। जो रिश्तेदार आपके साथ जो बदसलूकी करें उनके बदसलूकी को माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ये तमाम खसाइल लफ्ज़ सिला को शामिल है। इसी तरीके से लफ्ज़ रहम, रा पे ज़बर और हा के नीचे ज़ियर, लफ्ज़ रहीम, इससे माना और मुराद रिश्तेदार हैं, इससे मुराद रिश्तेदार हैं। और हज़रात गिरामी, दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके रिश्तेदार ना हों, हर किसी के रिश्तेदार हैं। यहाँ मुराद वो है जिसका आपस में नस्बी ताल्लुक़ हो, जिसका आपस में नस्बी ताल्लुक़ हो, नसब का ताल्लुक़ हो, चाहे वो महरम हो या गैर महरम, या इसी तरीके से चाहे वो वारिस हो या गैर वारिस। तो ये इसका मुख्तसर, इसका तमहीद, इस मुख्तसर से तमहीद से मालूम ये हुआ कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना और इसी तरीके से उनकी बदसलूकी को नज़रअंदाज करना, उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना, ये इसका मुख्तसर तमहीद है। अब मैं आपके सामने कुरान करीम की तरफ आपका जहन में लेकर चलूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर क्या जिक्र किया है, रिश्तेदारों के मुतालिक क्या बातें हमें कही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता दे करके तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो। और ये वो आयत करीमा है जिसको आप हर जुमा के दिन सुनते हैं, और इसी तरीके से खुतबे निकाह के मौके पर जब निकाह होता है उस वक्त आप इसको सुनते हैं। कभी आपने गौर किया कि उस वक्त ये आयत करीमा क्यों पढ़ी जाती है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए। निकाह के वक्त दो रिश्तों को, दो मुकद्दस रिश्तों को अल्लाह तबारक ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया। हम इसलिए इस आयत करीमा को पढ़ करके क्या है, दो अनजाने रिश्तों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस आयत करीमा की तिलावत करते हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कहा अल्लाह से डरो और उस रब से डरो जिसका वास्ता दे करके तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो। और फरमाया वल अरहाम, और रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं, उनके जो मामलात हैं, उनके जो हुकूक हैं, उन हुकूक के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहिए। सामीन किराम, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले अपने हक का जिक्र किया, उसके बाद में रिश्तेदारों के हुकूक का जिक्र किया, और ये बताया कि रिश्तेदारों के तुम्हारे ऊपर बहुत से हुकूक हैं, उन हुकूक को तुम अदा करो, उनके हुकूक को गसब ना करो, उनके हुकूक की हक तलफी ना करो। इस चीज़ का अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस आयत करीमा के अंदर हुक्म दिया। सामने किराम, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना, यही उनके साथ अच्छा सलूक है। सामने किराम, एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा, कि लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो। सबसे पहला जो हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि वअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। उसके बाद में फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबिज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ आप अच्छा सलूक करिए। फौरन माँ बाप के हुकूक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारों के हुकूक का तज़किरा किया। एक और जगह सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल कुर्बा, फरमाया अल्लाह की इबादत करो,
ہم نے بنی اسرائیلیوں سے پختہ عہد لیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور تھوڑا غور کرتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں کیا میسج دینا چاہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہا ہے، تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر اپنا حق ذکر کیا، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا، اس کے بعد میں رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ رشتہ دار کے حقوق کیا ہیں؟ سامعین کرام، رشتہ داروں کے حقوق، آپ ان کے ساتھ اچھا تعلقات بنائے رکھیے، خوشگوار تعلقات بنائے رکھیے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کیجیے، یہی ان کے ساتھ حقوق ہے۔ اور جو ان میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور اسی طریقے سے والاحسان، نیکی کرنے کا، والاحسان وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کریے، ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر دینے کا حکم فرمایا ہے۔ دینے سے مراد کیا ہے؟ یہاں دینے سے مراد یہی ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو تنگ دست ہیں ان کی آپ ضرورت کو پورا کیجئے، ان کی ضرورتوں کو مکمل کیجئے اور ان کی تنگی کو ختم کیجئے۔ افسوس تو اس بات پر ہوتی ہے، حیرانگی تو اس بات پر ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، کثرت سے ان کے پاس مال ہے، لیکن اسی شخص کے پاس جس کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، آپ اس کے رشتہ دار کے بارے میں تھوڑا سوچیں گے، تھوڑا غور کریں گے کہ اس کا رشتہ دار کیسا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس شخص کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے اسی شخص کا رشتہ دار پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے بچے کے پاس، یعنی اس کے رشتہ دار کے جو بچے ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، لیکن جس کے پاس مال اور دولت ہے وہ عیاشی کی زندگی گزار تو سکتا ہے، عیاشی کی زندگی میں وہ مست اور مگن ہے، لیکن اسے غیرت یہ نہیں آتی کہ میرے رشتہ دار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ہم دور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے ان کی تنگی کو ہم ختم کریں۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا، فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ جو مسکین ہیں ان کے تم حق کی ادائیگی کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، اس کے بعد میں جو مسکین ہیں، اور اسی طریقے سے جو وابن السبیل، جو مسافر ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کیجئے۔ اور سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں مومنوں کے بہت سارے صفات کا تذکرہ کیا ہے وہیں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ عقل مندوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا وہ اس کو کرتے ہیں۔ یعنی کس چیز کا حکم دیا؟ ان یوصل، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، تو رشتہ داری کو وہ جوڑتے ہیں۔ یعنی مومنین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو انہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو مومنین کو اس بات کی انہیں حکم دیا گیا کہ تم رشتہ داری کو جوڑیے، تو وہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ پڑھیں گے تو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ سخت تاکید کی اللہ رب العالمین نے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، صلہ رحمی کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ آپ اس کو سنیں گے تو بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پہلا جو فائدہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے، رزق کے اندر کشادگی اور عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے عمر میں اضافہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر انسان اپنی روزی کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی روزی کے اندر کشادگی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، ایک چیز کو دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بہت سارے ذرائع اور وسائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال کرتا ہوں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان اپنی روزی کے اندر اضافہ چاہتا ہے تو صلہ رحمی کرے، یہ صلہ رحمی کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کا عمر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مان لیجئے کہ وہ 50 سال کا ہے، دوسرا 60 سال کا، تو اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو وہ 50 سال کے عمر میں رہ کر کے اتنی ساری نیکیاں اکٹھا کر لے گا جتنا 60 سال کا آدمی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم اصل یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کیا ہم 60 سال کے ہیں تو 70 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہیں تو 80 سال کے ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہے، اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کر کے بلکہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے بندگی میں اپنے وقت کو لگائے گا اور بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کر لے گا، جتنا کہ 50 سال کا آدمی 50 سال کے اندر رہ کر کے اتنا نیکی اکٹھا کر لے گا، اتنا 60 اور 70 سال کا آدمی نہیں کر پائے گا۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ حضرات گرامی، تو دوسری چیز، پہلی چیز یہ کہ رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے اور عمر کے اندر اضافہ صلہ رحمی کرنے سے۔ دوسری چیز یہ خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کون سا ایسا گھر شاید آپ کو مل جائے جس گھر کے اندر دشمنی کی دیوار نہ کھڑی ہو؟ شاید آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈیں کوئی ایسا گھر جہاں آپ کو مل جائے۔ حضرات گرامی، آج جو گھروں کے اندر جو دشمنیاں ہیں، جو دشمنی کی جو دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، بیٹے بیٹیاں، یہ تمام لوگ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو وراثت میں جن کا حق ہے، یہ لوگ قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر اور خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل ومثرات فی المال ومنسات فی الاثر۔ کہا لوگوں، تم ایک دوسرے کی جو نسب ہے، اپنا نسب تم یاد کرو، اپنا نسب یاد کر لو۔ تعلموا من انصابکم فإن صلة الرحم محبۃ، کیونکہ جب نسب یاد ہوگا تو تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اچھے سلوک کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر کیا ہے، محبت پیدا ہوگی۔ وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ وَمَنْسَاتٌ فِي الْعَصْرِ، اور آپ کی جو موت ہے وہ تاخیر سے آئے گی، یعنی وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی۔ تو خاندان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْقُرْبَى وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ، کہ اے میرے بندو، تم میں سے جو صاحب فضیلت ہیں، جن کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہے، وَالسَّعَةِ،
अय्यो तो लिल कुर्बा, उन्हें चाहिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को माल अता करें, वो उस बात की कसम न खाएं कि मैं अपने रिश्तेदारों को माल नहीं दूंगा। किसी अखलाकी जुर्म की वजह से जब उनसे गलतियां हो जाएं तो तुम्हें चाहिए कि उनको तुम दरगुजर कर दो, उनको माफ़ कर दो। वलियाफ वलियस्फहू, तुम्हें चाहिए कि उनको माफ़ कर दो और उनको दरगुजर कर दो। अला तुहिब्बूना, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो, क्या तुम इस बात को नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तोहमत लगाया गया। ग़ज़वे बनु मुस्तलिक से जब वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गई, उनका हार टूट करके गिर गया। उसी को ढूंढने के लिए वो दोबारा जाती हैं और इधर से जो लश्कर वहाँ पड़ाव डाला हुआ था वो दूसरे मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। उसके बाद में जो मुनाफिकीन का जो सरगना था, जो सरदार था, अब्दुल्ला इब्ने उबय, ये एक लंबा वाक़या मैं मुख्तसर करके इसको बता रहा हूँ सामिने किराम। तो उस लश्कर में एक सहाबी ऐसे थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उस लश्कर में पीछे रहा करते थे ताकि जो पीछे छूट जाए या इसी तरीके से कोई माल वगैरह छूट जाए, कोई सामान छूट जाए तो उसको पीछे से वो लेकर के जाते थे। ये बाद में जब वहाँ पर आए हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन्होंने पाया। उसके बाद में देखा तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद में अपने ऊँट पर क्या है बैठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दिया। सामीने किराम, तो जो मुनाफिकीन का जो सबसे बड़ा सरगना था अब्दुल्ला इब्ने उबय, जब उसने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी क्या है सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ आई, तो क्या उसने तोहमत लगा और उस वाक़े को बढ़ा चढ़ा करके अपनी तरफ से क्या है उसमें मिला करके बातों को, और उसने मदीना में क्या है चर्चा कर दिया, इस वाक़े को फैला दिया। और उन्हीं में से एक आदमी और थे जिनका नाम मिस्ताह बिन असासा था। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे और इन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल खर्च करते थे, इनके घर का जिम्मेदारी उठाए हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन जब देखा कि ये हमारे रिश्तेदार हो करके भी इस वाक़े के अंदर ये भी मुलव्विस है, ये भी इस वाक़े की प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कसम खा लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अब मैं अपना माल इन पर खर्च नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक ताला ने इसी आयत करीमा को नाजिल किया जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, कि ऐ मेरे बंदो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? क्या तुम इस बात को नहीं चाहते? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस बात को सुना, फौरन कहा अल्लाह क्यों नहीं, बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हम तो ये ज़रूर चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे। और उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा उन पर माल खर्च करने लगे। मेरे भाइयों, सोचिए कितना बड़ा कलेजा है कि एक बाप की बेटी पर एक आदमी बेबुनियाद की इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन जब नबी अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत करीमा को नाजिल किया कि ऐ मेरे बंदो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा, ऐ अल्लाह हम ये ज़रूर चाहते कि अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दोबारा माल खर्च करने लगे। तारीख़ की किताबें हमें बताती हैं कि जितना खर्च कर रहे थे उससे ज़्यादा खर्च करने लगे। सामीने किराम, सोचिए कि एक बेटी पर तोहमत, बेबुनियाद तोहमत जिसकी कोई हकीकत नहीं, इतना बड़ा जिगरा कि दोबारा खर्च कर रहे हैं। हम तो अगर हमारे और आपके दरमियान ऐसा वाक़या अगर पेश आ जाए, छोटी छोटी बातें अगर हो जाती हैं तो एक दिन दो दिन छोड़िए, सालों साल तो हमारे और आपसे मुलाकात नहीं होती है। ये हालत है। अल्लाह तबारक ताला की इस कौल पर हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन लब्बैक कहा। सामिने किराम, सलाह रहमी करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा अमल है। खसाम कबीले का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने कुछ चंद साथियों के साथ गया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप रसूल होने का दावा करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ।
उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी अगर आप रसूल होने का दावा करते हैं तो बताइए कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। अल्लाह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना। फिर उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा सबसे बेहतरीन अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करना, ये अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन अमल है। फिर उसने सवाल किया अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा सबसे बेहतरीन अमल है। आपने फरमाया लोगों को बुराइयों से रोकना और भलाइयों से लोगों को बुराइयों से रोकना और भलाइयों की तरफ उभारना, यह सबसे बेहतरीन अमल है। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बताई वो अल्लाह की नज़र में बताया कि जो सबसे बेहतरीन और सबसे महबूब अमल है वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। ये अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन अमल है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और उनके साथ बेहतरीन और खुशगवार ताल्लुकात बनाया जाए। ये अल्लाह की नज़र में मेरे भाइयों सबसे बेहतरीन अमल है। और इसी तरीके से ये सिला रहमी करना ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक आदमी आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलनिल जन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मैं उस अमल को करूं दखलल जन्ना, तो जन्नत के अंदर चला जाऊं। सहाबे कराम की एक जमात मौजूद थी। कहा मालहू, अरे इसे देखो इसे क्या हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालहू अरबुन मालहू, तुम्हें क्या हो गया। अरे ये तो जन्नत के अंदर जाना चाहता है इसीलिए तो ये सवाल कर रहा है, ये जन्नत के अंदर जाना चाहता है। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू जन्नत के अंदर जाना चाहता है, अगर तू जन्नत का मुसाफिर बनना चाहता है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में फरमाया तअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वतुकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, वतुतिज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वतसिलुर रहमा, और फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। ये जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है मेरे भाइयों कि अगर हम और आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्लाह तबारक ताला खुश होकर के क्या है हमें और आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो तो ये अमल तुम्हें करना पड़ेगा। पहला ये कि अल्लाह की इबादत करनी होगी, दूसरा उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना होगा, और नमाज पढ़नी होगी, ज़कात अदा करना होगा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना के अंदर रहा करते थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का आए, हिजरत करके मदीना आए, मक्का छोड़ करके मदीना आए, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना चीखो पुकार, मैंने सुना लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम करने के लिए अहलन वसहलन कहने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। मैंने इन चीज़ों को अपने कानों से सुना। कहा फ़ख़रजतु फ़ीमन ख़रजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं भी देखने के लिए मैं भी अपने घर से निकला। जैसे मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फलम्मा रायतु वजहहु फ़अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, जैसे मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मैं फ़ौरन पहचान लिया, मैं फ़ौरन समझ गया कि ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है, किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। और जो पहला जुमला मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना वो ये था, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वतुतिमुत्ताम, मिस्कीनों को, मुहताजों को, ज़रूरतमंदों को, भूखों को खाना खिलाओ। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वतुतिमुत्ताम, और जो भूखे उनको खाना खिलाओ, वतसिलुल अरहाम, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो।
उसके बाद में फरमाया वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, और नमाज पढ़ो, रात के तारीकी में तुम नमाज पढ़ो, जब लोग सो रहे हो, जब लोग गहरी नींद सो रहे हो, तुम उठ करके अल्लाह की इबादत करो, तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, और तुम जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तो ये रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। मेरे भाइयों, आज हम और आप जो परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, हमारे मदारिस और हमारे मसाजिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसका एक सबब ये भी है, रिश्तेदारियों को हमने काट दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मन वसलनी वसलतुहु, जो शख्स रिश्तेदारी ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रावी हदीस को बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अर्श अर्रहम मुअल्लकतुन बिल अर्श, कि ये जो रहम, जो रिश्तेदारी है, ये अर्श से लटका हुआ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इस रिश्तेदारी ने अल्लाह ताला से ये गुजारिश किया, ये रिक्वेस्ट किया कि ऐ अल्लाह, जो मुझे जोड़े उसको तू जोड़ दे, और जो मुझे काटे उसको तू काट दे। आप कुछ समझे इससे जोड़ना और ख़त्म करना क्या माना इसका मफहूम? मेरे भाइयों, इसका माना मफहूम ये है कि जो शख्स मुझे जोड़े, यानी रिश्तेदारी ने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह, जो मुझे जोड़े उसको तू जोड़ दे, यानी जो रिश्तेदारियों को जोड़े उसको तू अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो रिश्तेदारियों को खत्म करे उसको अपनी रहमत से अल्लाह तू काट दे। सामिन किराम, आप बारहा सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पहली वही लेकर के आए, सूरह अलक की 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हर कोई जानता है, इसका बहुत मारूफ और मशहूर वाक़या है। गारे हीरा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेकर के आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते हैं, आप पर वही नाजिल हो जाती है, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशानी के आलम में नजर आते हैं, वहां से गारे हीरा से निकलते हैं, भाग करके अपने घर आते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करके कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे डर है कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरे रूह निकल जाएगी। मेरे भाइयों, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दिया। उसके बाद में वो तसल्ली देते हुए जो जुमला अदा कर रही हैं, उनको तसल्ली दे रही हैं और कह रही हैं कल्ला अबशिर, हरगिज़ नहीं, ऐ नबी आप खुश हो जाइए, आपको बशारत है, अबशिर कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको जलील नहीं करेगा। मेरे भाइयों, थोड़ा सोचिएगा, आज हम और आप हिंदुस्तान के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर हमारे मुसलमान भाई क्यों परेशान हैं? इसका एक अहम सबब यह है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, ऐ नबी हरगिज़ नहीं, आपको अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेगा, आपको जलील नहीं करेगा। क्यों आपको जलील नहीं करेगा? इसलिए फ़वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहिमा, अल्लाह की कसम, इसलिए आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, रिश्तेदारियों को आप जोड़ते हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको जलील नहीं करेगा। और उसके बाद में फरमाया, कुछ सिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की, व तस्दुकुल हदीसा, आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, व तहमिलुल कल्ला, और जो लोगों के बोझ उठाते हैं, जो कमा खा नहीं सकते, उनको आप कमा करके उनको खिलाते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, जो मिस्कीन हैं, आप उनका बोझ उठाते हैं। व तक़रिज़ ज़ुयूफ़ा, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो परेशान होते हैं, जो परेशानी के आलम में होते हैं, जो मुश्किलात में फंसे हुए होते हैं, उनकी आप मदद करते हैं। मेरे भाइयों, आप थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा तसव्वुर कीजिए और थोड़ा समझिए कि हमारी और आपकी हालत क्यों हिंदुस्तान के अंदर टाइट है, क्यों हम परेशान हैं। इसकी अहम वजह यह भी है कि आज एक भाई दूसरे भाई से किनारा कश,
एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को देखना नहीं चाहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खुशहाली चाहते हो, अगर अपने रिज़्क़ के अंदर कुशादगी चाहते हो, और अगर तुम खुशहाली की ज़िंदगी अगर जीना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करिए और उनसे खुशगवार ताल्लुकात बनाए रखिए। उनमें जो गरीब हैं, जो गरीब ख़ानदान है, जो गरीब तबका है, जो मालदार है, उनको मालदारों को चाहिए कि उनकी मदद करके उनको भी खुशियों में शरीक करें, उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा करें कि वो भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजर और बसर कर सकें। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने सिला रहमी के ताल्लुक़ से पेश किया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारे दरमियान में, हमारे रिश्तेदारों के दरमियान में, हमारे भाइयों के दरमियान में जो एक दुश्मनी की जो दीवार खड़ी हुई है, अल्लाह उस दीवार को तो गिरा दे। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के तई मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।